بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کہانیوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ بہت دنوں کی بات ہے، کسی گاؤں میں ایک لوہار رہتا تھا۔ وہ بڑا محنتی اور ہنرمند تھا۔ وہ دن بھر اپنی بھٹی پر کام کرتا اور گاؤں بھر کے لوگوں کے لیے اچھی اچھی چیزیں تیار کرتا۔ برتن بنانے کے ساتھ ساتھ وہ اوزار اور ہتھیار بھی بناتا تھا۔ سب لوگ اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو بہت پسند کرتے۔ لوہار کے پاس ہنر تو تھا، لیکن وہ تھا بڑا گھمنڈی اور مغرور۔ ایک دن وہ کسی سپاہی کے لیے ہتھیار بنا رہا تھا۔ وہ ہتھیار بہت خطرناک اور تیز تھا۔ لوہار نے کچھ لاپرواہی برتی اور یوں ہوا کہ ہتھیار سے اس کی ناک زخمی ہو کر کٹ گئی۔ لوہار چونکہ بڑا مغرور تھا اور اس کو اپنی صورت پر بڑا ناز تھا، اب تو وہ بہت گھبرایا اور خود سے کہنے لگا، ہائے افسوس، اب میں اس کٹی ناک کے ساتھ لوگوں کے سامنے کیسے جاؤں گا۔ وہ اپنے زخم کی تکلیف کو بھول کر اپنی صورت کا سوچنے لگا۔ کئی دن تک وہ اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ جب بھی کوئی گراہک آتا تو وہ گھر کے اندر سے ہی جواب دے دیتا کہ میری طبیعت خراب ہے، تم پھر کبھی آنا۔ گراہک یہ بات سن کر واپس چلے جاتے۔ کچھ دنوں کے بعد جب اس کا زخم ٹھیک ہوا تو اس نے آئینہ دیکھا۔ وہ سوچنے لگا کہ تو سب لوگ مجھے ناک کٹا بولیں گے اور میرا مذاق اڑائیں گے۔ یہی باتیں سوچتے سوچتے اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے نوبت فاقوں تک پہنچ گئی۔ آخر اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ وہ اپنے گھر سے نکلا اور گاؤں میں گھومنے لگا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ وہ جہاں بھی جاتا جان پہچان کے لوگ اسے دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ وہ افسوس کا اظہار کرتے اور اس کی ناک کٹ جانے کا سبب پوچھتے۔ لوہار نے بھی ایسے سوالوں کے جواب دینے کے لیے ایک جھوٹی کہانی گڑھ رکھی تھی۔ لوگوں کے پوچھنے پر وہ گردن اونچی کر کے بڑے فخر سے کہتا، بھیا اب تم سے کیا چھپاؤں، یہ 40 دن پہلے کی بات ہے۔ مجھے ایک عجیب سا خواب دکھائی دیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نورانی چہرے والے بزرگ میرے سرہانے کھڑے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ اے نیند کے مار اٹھ، نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھ اور اللہ کے نام پر اپنی ناک قربان کر دے۔ اگر تو ایسا کرے گا تو اللہ میاں تجھ پر مہربان ہو کر تجھے اپنا دیدار کروائیں گے۔ سب مسلسل 3 دن ہر صبح یہی خواب دکھائی دیا تو میں نے اسے خدا کا حکم جانا اور پھر اپنی ناک قربان کر دی۔ اللہ کی راہ میں تو اس کے نیک بندے اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں اور اف تک نہیں کرتے، تو میں نے بھی ہنسی خوشی اپنی ناک قربان کر دی۔ لوگوں نے یہ اس کی باتیں سن کر حیرت سے پوچھتے ہوئے کہا، سچ تم نے اللہ میاں کا دیدار کیا؟ ہمیں بھی ان کے بارے میں کچھ بتاؤ، ہم جاننا چاہتے کہ وہ کیسے دکھتے ہیں۔ لوہار بھی بڑے فخر سے کہتا، دوستو کیا بتاؤں، اللہ میاں کا دیدار تو حضرت موسیٰ بھی نہ کر سکے۔ میں تو ایک گنہگار بندہ ہوں، ہم بس اتنا جانتے ہیں کہ ہر طرف نور ہی نور تھا۔ گاؤں کے لوگ یہ سن کر لوہار سے بہت متاثر ہوئے اور کہنے لگے، بھیا تم تو بہت خوش نصیب ہو جسے اللہ کا دیدار نصیب ہوا، اور وہ آگے بڑھ کر لوہار کا ہاتھ چومنے لگے۔ لوہار نے بڑے فخر کے انداز میں کہا، وہ بزرگ جو میرے خواب میں آئے تھے انہوں نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ گاؤں کے سب لوگوں سے کہہ دو جو کوئی بھی اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو انہیں بھی چاہیے کہ اپنی ناک کو کٹوا لے۔ گاؤں کے سب لوگ بڑی دلچسپی اور حیرت سے لوہار کی باتیں سنتے اور اس کی قسمت پر رشک کرتے۔ اللہ میاں نے اسے اپنا دیدار کروایا تھا، ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی سوچتے کہ کاش انہیں بھی یہ سعادت نصیب ہو، لیکن ناک کی قربانی کا خیال آتے ہی وہ چپ ہو جاتے۔ لوہار کی باتوں سے کچھ لوگوں پر اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے اللہ کا دیدار کرنے کے لیے اپنی ناک قربان کر دی۔ وہ انتظار کرتے رہے لیکن ناک قربان کرنے کے بعد بھی انہیں یہ دیدار نصیب نہ ہوا۔ بیچارے مفت میں اپنی ناک کٹوا بیٹھے۔ اب تو وہ سب بہت پریشان ہو گئے، سمجھ گئے کہ لوہار نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور اللہ کے دیدار کی جھوٹی کہانی سنا کر انہیں بھی اپنی طرح ناک کٹا بنا دیا ہے۔ انہیں لوہار پر بہت غصہ آیا۔ وہ سب اکٹھے ہوئے اور لوہار سے بدلہ لینے کی ٹھان لی، لیکن ان میں سے ایک کہنے لگا، اب کیا ہو سکتا، یہ بات تو ہمیں پہلے سوچنی چاہیے تھی۔ اب اس گاؤں میں اکیلا لوہار نہیں بلکہ اور بھی 10-12 لوگ اپنی ناک کٹوا بیٹھے تھے۔ گاؤں کے باقی لوگ بھی ان سب کو دیکھ کر حیران ہوتے اور ان سے بھی پوچھنے لگے، کیوں بھائی، کیا لوہار کی طرح تمہیں بھی اللہ کا دیدار نصیب ہوا؟ لوگوں کے ایسے سوالوں پر پہلے تو وہ بہت گھبرائے، لیکن پھر سوچنے لگے کہ ناک تو کٹ ہی چکی ہے، اب اگر ان لوگوں سے سچی بات کہیں گے کہ ہمیں اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوا تو یہ ہم پر ہنسیں گے اور ہمارا مذاق اڑائیں گے۔ ہمیں اس شرمندگی سے بچنا چاہیے کیونکہ ہم سب نے رہنا تو اسی گاؤں میں ہے۔ یہ سوچ کر انہوں نے لوگوں سے کہا کہ ہاں، ہمیں بھی اللہ کا دیدار نصیب ہوا، ہم بھی اللہ کے خوش نصیب بندوں میں سے ہیں،
इस तरह वह सब भी लोहार की झूठ मूठ की बात करने लगे। अब होना क्या था, इन सब की बातें सुनकर गांव के दूसरे लोगों के दिलों में भी अल्लाह ताला का दीदार करने की ख्वाहिश जन्म लेने लगी। जिन लोगों की नाक पहले से कट चुकी थी, इन्होंने इनको रोकने के बजाय यह सोचा कि हमारी नाक तो पहले से कट चुकी है, अच्छा यह लोग भी अपनी नाक कटवा ले ताकि हम सब एक जैसे हो जाए और हमें रोज रोज इनके सवालों से छुटकारा मिल जाए। फिर यूं हुआ कि इनके बातों में आकर गांव के बाकी लोगों ने भी अपनी नाक काट ली, यहाँ तक कि धीरे धीरे सारा गांव इसकी लपेट में आ गया। थोड़े दिनों के बाद गांव भर में एक भी ऐसा आदमी ना बचा जिसने खुदा के दीदार के शौक में अपनी नाक ना काटी हो। गांव के सारे लोग अब नाक कटे हो चुके थे और कुछ दिनों बाद उस गांव का नाम ही नाक कटे लोगों की बस्ती पड़ गया। नाक कटों की बस्ती में कोई किसी को नाक कटा नहीं कहता था, क्योंकि अब तो सभी अपनी नाक कटवा चुके थे। चंद सालों के बाद उस गांव में एक मसला खड़ा हुआ, क्योंकि उनके बच्चे अब बड़े हो रहे थे। कुछ लोगों की राय यह थी कि सारे बच्चे की नाक भी काट दी जाए, वरना बड़े होकर वह हमें नाक कटा बोलेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे और हमें हकीर समझेंगे। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी थे जो इस बात के हक में ना थे। यूं यह मसला बढ़ने लगा और गांव के सब लोगों ने फैसला किया कि गांव का सरदार ही इस बात का फैसला करे। क्योंकि गांव का सरदार जो खुद भी नाक कटा था, उसने पंचायत बुलवाया और पंचायत में इस मसले पर बड़ी देर तक बहस हुई। आखिर में यह तय पाया कि बच्चों की नाक ना काटी जाए। गांव का सरदार कहने लगा, हम अल्लाह का नाम लेकर मजीद ऐसा गुनाह नहीं कर सकते, वरना खुदा हमसे और भी नाराज हो जाएगा। हमारा हाल तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन बच्चों को इससे बचाना चाहिए। इस तरह पंचायत ने जो फैसला किया, उसकी वजह से गांव के बच्चों की नाक कटने से बच गई। फिर यह हुआ कि दिन गुजरते गए और बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। जब कभी वह अपने बड़ों की कटी हुई नाक देखते और उनके बारे में सोचते तो उन्हें बड़ी हैरत होती। वह सोचते कि हम बच्चों की नाक तो ठीक है, यह बड़ों की नाक को क्या हुआ। जब हम अपने बड़ों से उनकी नाक के मुतालिक सवाल करते तो बड़े कुछ न कुछ बहाना बनाकर उनको टाल देते। लेकिन गांव के सरदार का बेटा बड़ा चंचल और जिद्दी था। एक दिन ऐसा हुआ कि वह मचल गया और जिद करने लगा और अपने बाप से बोला कि अगर आपने मुझे सच ना बताया तो मैं भी अपनी नाक कटा लूंगा। अपने बेटे की जिद को सोचकर सरदार सोचने लगा, अगर यह नाक काटने वाला चक्कर दोबारा शुरू हो गया तो गांव के सब बच्चे भी नाक कटे बन जाएंगे। उसने अपने बेटे को बहलाने फुसलाने की बड़ी कोशिश की, फिर उसे समझाने लगा, लेकिन उसका बेटा बड़ा ही जिद्दी था और अपनी बात पर अकड़ गया। सरदार ने उसे लालच भी दी, लेकिन वह ना माना। आखिर हार थककर गांव के सरदार ने अपने बेटे को सारी बात सच सच बता दी। जब उसके बेटे को सच बात मालूम हुई तो वह बहुत उदास हो गया और इसके दिल में बड़ों से नफरत पैदा हो गई। वह सोचने लगा कि हमारे गांव के बड़े कितने खुदगर्ज हैं। अपना नुकसान तो हुआ, उन्हें जानबूझकर दूसरों का नुकसान तो नहीं करना चाहिए था। अपनी नाक कट गई तो दूसरों की नाक भी कटवा दी, और वह भी खुदा का नाम लेकर। ऐसा करके इन्हें क्या मिला? वह लड़का जितना ज्यादा सोचता, उसके दिल में अपने बड़ों से उतनी ही ज्यादा नफरत पैदा हो जाती। जब उसने यह बात अपने दोस्तों को बताई तो उन्हें भी अपने बड़ों की इस हरकत पे बहुत अफसोस हुआ और अपने बड़ों के लिए छोटों के दिलों में जो इज्जत हुआ करती थी वह इस बात से खत्म हो गई। कई लड़कों ने तो अपने बड़ों की बात ही मानना छोड़ दी और उनकी हर बात से मुखालिफत करने लगे। अपने बच्चों के ये रंग ढंग देखकर गांव में बड़ी खलबली मच गई। गांव के सरदार ने पंचायत बुलाई और गांव के तमाम बड़े कहने लगे, नौजवान बिगड़ते जा रहे हैं, वह ना तो बड़ों की इज्जत करते हैं ना ही उनका कहना मानते हैं। यह बच्चे तो बागी होते जा रहे हैं, इन्हें किसी न किसी तरह सुधार कर सीधे रास्ते पे लाना होगा। अब पंचायत में मौजूद तमाम बड़े अपने छोटों को काबू में लाने की तरकीबें सोचने लगे, लेकिन उनकी तमाम कोशिशें बेकार गई। दिन यूं ही गुजरते गए और बड़ों और छोटों के दरमियान दूरी बढ़ती गई। गांव का सरदार कहने लगा, जरा बुलाओ उस लोहार को जिसने सबसे पहले ये हरकत की थी। न वो ऐसी हरकत करता, न आज हम मुसीबत में होते। अब गांव के चंद लोग उठे और लोहार को ढूंढने निकल पड़े। उन्होंने देखा कि लोहार भट्टी पर काम कर रहा था। वह उनसे कहने लगे, चलो सरदार तुम्हें बुला रहा है। बड़ी मुश्किल से खींच तानकर वह लोहार को पंचायत तक ले आए और लोहार वहां पहुंचते ही सबसे माफी मांगने लगा। उसने कहा, मुझे माफ कर दे, मैंने शर्मिंदगी से बचने के लिए यह झूठ बोला था। मैं नहीं जानता था कि मेरा यह झूठ इतनी बड़ी मुसीबत को दावत दे देगा।
पंचायत में मौजूद तमाम लोग बड़े गौर से लोहार की तरफ देख रहे थे, क्योंकि उसने अपनी नाक पर एक लोहे का खोल चढ़ा रखा था, जिसकी वजह से उसके नाक की बदनुमाई छुप गई थी। गांव का सरदार लोहार से कहने लगा, अब तुम्हारी सजा यह है कि तुम गांव वालों के लिए ऐसे ही खोल तैयार करो ताकि उसकी नाक की बदसूरती छुप जाए। फिर सरदार कहने लगा, हम सबको अपने गुनाहों की सजा मिल रही है, क्योंकि हम सब ने अल्लाह का नाम लेकर झूठ बोला और एक दूसरे को धोखा दिया। मुझे अफसोस है कि हमें इसके नतायज खुद भुगतने होंगे। और फिर एक दिन उस गांव से बहुत नेक और अल्लाह वाले एक बुजुर्ग का गुजर हुआ। वो बहुत नेक थे और अल्लाह वाले थे। उन्होंने जब गांव वालों की ऐसी हालत देखी तो उन्हें उन पर बड़ा तरस आया। वह गांव वालों को उस मुसीबत से निजात दिलाने के लिए उसी गांव में रुक गए। एक दिन उस अल्लाह वाले बुजुर्ग ने गांव के बड़ों को जमा किया और उनसे कहने लगे, तुम तमाम लोग अपने साथ यह क्या जुल्म कर बैठे हो? अगर रब को देखना चाहते हो तो वह तो हर जगह मौजूद है। हमारा सांस लेना, सूरज का तुलू और गुरूब होना, क्या इस बात के लिए काफी नहीं है कि अल्लाह मौजूद है? अगर उसको पाना था तो अपने दिलों में झांक कर देखते। अब तुम सब खुदा से माफी मांगो। उस साल जब इबादत की रात आई तो गांव में बड़ी खुशियां लाई। वो बुजुर्ग गांव के सारे बड़ों को अपने साथ लेकर मस्जिद में गए और उनसे कहने लगे, आज बड़ी बरकतों वाली रात है, खूब इबादत करो और खुदा से अपने गुनाहों की माफी मांगो। खुदा तो बिगड़े कामों को बनाता है, जब तुम्हारी तौबा भी कबूल करेगा। गांव के सारे बड़ों ने रात भर खूब इबादत की और रो रो कर खुदा से अपने गुनाहों की माफी मांगी। खुदा तो तौबा कबूल करने वाला है। जब गांव वालों ने साफ नियति से तौबा की और दुआ मांगी तो खुदा ने फिर उनकी दुआ कबूल की। फिर यूं हुआ कि जब वह गिड़गिड़ा कर रो रहे थे, अपने गुनाहों की माफी मांग रहे थे, तो उनके बच्चे ने देख लिया कि गांव के तमाम बच्चे एक दूसरे से कहने लगे, हमारे बड़े वाकई अपने गुनाहों पर नादिम हैं। जब खुदा माफ करता है तो हम कौन होते अपने बड़ों से बदला लेने वाले। तमाम बच्चों की आंखों में आंसू थे और वो आगे बढ़कर अपने बड़ों से लिपट गए। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें।